ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਤੇ ਐਮਪੀ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਸਿਧਾਰਥ ਨਗਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਐਮਪੀ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 25 ਲੱਖ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟ ਲਿਸਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਹਾਰ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ H5 ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 1 ਚੋਂ 8 ਵੋਟ ਫੇਕ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਵੋਟ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹਨ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਡਰ 'ਚ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਰਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਰਾਹੁਲ ਆਪਣੀ ਫੇਲੀਅਰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਇਸ਼ੂ, ਬਸ ਮੀਡੀਆ ਹੈਡਲਾਈਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਫੇਕ ਫੋਟੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਝੂਠੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਕਦੋਂ ਧਮਾਕਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰੀ ਸੈਲਜਾ ਤੇ ਰਾਓ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁਝ टाइमिंग पे डिपेंड करते हैं। नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी ने फिर से कुछ ऐसे बातें जो अपना विफलता को छुपाने के लिए प्रेस को एड्रेस किया। पार्लियामेंट सत्र में मिंता देवी नाम की एक महिला का तस्वीर को टी शर्ट में छपवा करके पार्लियामेंट के परिसर में घूमते रहा और उसको इतना उछला, शाम तक वो महिला ने इतना डांटा कांग्रेस पार्टी को कि उसको उम्र को 124 बता करके जितना बदनाम किया। तो ऐसा नकली फोटोग्राफ, नकली नाम, नकली इश्यू लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समय समय में बोलते रहते हैं। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इश्यू को लेके आ रहे हैं। अब चुनाव के समय वो विदेश जाता है, पार्लियामेंट चलते समय राहुल गांधी छुपके से कंबोडिया निकल जाता है, थाईलैंड निकल जाता है। बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, वो कोलंबिया चले गए। तो वो विदेश जाते रहते हैं, तो उसको विदेश से जो उसको प्रेरणा मिलता है, फिर आपका समय को बर्बाद करते हैं। नेता प्रतिपक्ष सीरियस मुद्दे पे बात करना चाहिए, फजूल के बातें पे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ये मेरा उनको पहला सुझाव है। उन्होंने हरियाणा चुनाव को लेकर के ये कहा कि एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी जीत रहे थे। अरे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल में हमेशा आपदन हुए हैं। 2004 में पक्का जीत गया ऐसा हम मान रहे थे, और एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल पूरा बीजेपी एनडीए को क्लियर कट जिता रहे थे। लेकिन जब काउंटिंग हुआ तो हम हार गए। तो उस समय हमने तो रोना धोना नहीं किया, हमने इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दिया, हमने माना और हमने कांग्रेस और उनके जो यूपीए गठबंधन को हमने बधाइयां दी। पराजित हो या जीत हो, उसको स्वीकार करना पड़ेगा, ये लोकतंत्र का नियम है। और उसके बाद 2 बार यूपीए सरकार ने 10 साल चलाया। हमने इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दिया, हमने ओपिनियन पोल को गाली नहीं दिया, एग्जिट पोल को हमने कभी गाली नहीं दिया। हरियाणा में चुनाव चल रहा था, उनके वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने उसी समय कहा कि हरियाणा में कांग्रेस जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि हरियाणा के कांग्रेस के नेता ही हराना चाहते हैं। अभी 3 दिन पहले उनके एक फॉर्मर मिनिस्टर ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और ये भी कहा कि कांग्रेस हरियाणा में इसलिए हारा कि कांग्रेस के नेता ही काम नहीं कर रहे थे और खुद ही हरा रहे हैं।
और फिर कांग्रेस के जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि वहां तालमेल ही नहीं है ग्रास रूट में कांग्रेस पार्टी का, कैसे जीत सकते हैं। कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि वो अपने वजह से हारे हैं, और यहां राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक लाइन कहा कि हम चुनाव जीतेंगे, हमारा अच्छा व्यवस्था है। व्यवस्था मतलब क्या है? बीजेपी, हमारा डिसिप्लिन, हमारा काडर, हमारा नेता का समर्पण, हमारा कार्यकर्ताओं का त्याग, ये है हमारा व्यवस्था, ये है हमारी ताकत। इसी से हम विश्वास से कहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। हम 24 घंटे दौड़ते रहते हैं। मैंने भी अपना जिंदगी में 3-3, 4-4 महीने गांव घर नहीं देखे हुए अलग अलग जगह में पैदल चलते थे। ये हम लोग का सिस्टम है बीजेपी का, ये हमारा व्यवस्था है। इलेक्शन में सबसे पहले वोटर लिस्ट होते हैं, वोटर्स की सूची होते हैं। वो सूची सबके पास उपलब्ध होता है, वेबसाइट में होता है। पॉलिटिकल पार्टी उस सूची को देख सकते हैं और उसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का मौका होता है। कोई भी अगर ऐसा लगे कि उसका नाम कट गया है, कोई फर्जी है, उसको कंप्लेंट देने का सिस्टम होता है। सूची में सिर्फ भारत के नागरिक ही नाम हो सकता है सूची में। अगर कोई गलत हो गया तो उसको हटाने के लिए प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ने चलाया भी है। अभी एसआईआर जो कर रहे हैं वो वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के लिए होता है। कोई कंप्लेन नहीं है। जो नकली है, जिसका नाम नहीं है या जो इस दुनिया में नहीं है या चले गए हैं, उसका नाम कट गया, वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी रो रहे हैं। वहां पब्लिक खुश है कि शुद्धिकरण होना चाहिए हमारा वोटर लिस्ट का।